उपस्थित हैं, हम लोग इनका हृदय तल से स्वागत करते हैं। आप सबों का अभिनंदन। जैसा कि विषय की जानकारी आप सबों को है, इस विषय को हम लोगों ने विभक्त किया है जिससे कि आपको भी सुविधा हो जाए और जज को भी सुविधा हो। सामान्य तौर पर प्रक्रिया भी वही होती है। इसमें चूँकि वाद और विवाद, अंग्रेजी में जिसे डिबेट कहते हैं, कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे, कुछ जो है विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन उसे 4 खंडों में हम लोगों ने विभाजित कर दिया है। सबसे पहले तो विषय वस्तु, उसके लिए 10 अंक निर्धारित है। दूसरा है उस विषय वस्तु को किस प्रकार आप संदर्भित करते हैं, उससे जोड़ते हैं अपने आप को, संदर्भ। तीसरा, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी प्रस्तुति, किस प्रकार से आप अपनी बातों को रख रहे हैं। और अंतिम है आपकी भाषा कैसी है, भाषा परिमार्जित हो। चूँकि विषय वस्तु जो है और यह विषय भी है भाषा से जुड़ा हुआ, अतः आपकी भाषा परिनिष्ठित हो, परिमार्जित हो। जहाँ तक अभिव्यक्ति की बात है, वह स्वतंत्रता है आपकी। आप जिस भाषा में अपनी बातों को बेहतर ढंग से रख सकते हैं, उस भाषा में रख सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, चाहे वह आपकी मातृभाषा हिंदी हो या फिर अंग्रेजी या फिर चाहे तो मैथिली। इन तीनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, आप सबों की मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना है कि आप अच्छे ढंग से अपनी बात को रखें। और 5 मिनट आपके लिए निर्धारित है समय। Respected judges, teachers, and my dear fellow, a very good morning. Myself Kaushiki Bharadwaj from Zoology Department, Degree 2. I am here to represent my views in the favor of topic Lalit Narayan Mithila University is touching height of excellence in 50 years and continuously, and I can also say sure. All of us know about the history of our university. Everyone knows that our university established in 1972 at Saramohanpur, village of Darbhanga. Later on it shifted to Raj campus, Darbhanga in 1975. But these are history of that time. We should discuss the phases of education in our field. What happened actually? At past, Central Library has collection of books, manuscripts, photographs, and bibliographic material as drawn on the repository of Darbhanga Raj. In 50 years of existence, university has made many exemplary achievements. Like in 2015, 24 postgraduates topped, and they acquired gold medal in the 7th convocation of Lalit Narayan Mithila University, which was held in Dr. Nagin Jha Stadium. And at that time our VC was Professor Saket Kushwaha, who presided over the function. In 2016, our college, CM Science College, got A grade certificate by NAC, which was one of the proudest, or which is one of the proudest moment of our country, of our college. And at that time, we can say that was a golden era of our college. Now coming to the women empowerment phase of our university, our university is running a special college for women, WIT, Women Institute of Technology,
which was inaugurated by our late Dr. APJ Abdul Kalam, who was president at that time in 2005. Now, most of the students are thinking like there is a negative review between us, our university, because we know the exact situation, we know the exact past situation of our country, what we have faced. We were not aware of a world pandemic. Our country faced COVID. LMNU or any university never faced the hurdle like COVID. We never had a world pandemic. But at that time, university organized centralized online classes. My very first interaction with my teachers was through that classes, and the classes were going on. But is it suitable to pass any judgment on the basis of this, that our university is late, is this possible, is this suitable? I don't think so it is possible, because our university is established 50 years ago, and we and all of us were admitted here, or I can say enrolled here 2 or 3 years, past or 2 or 3 years. It is really very unsuitable to pass any judgment to our university. Lastly, I can say education is a lifelong process. Education is a continuous process. It never gonna stop, never gonna end. And lastly, that's it. Real scholars are those who groom, who treat illiterates as a scholar. Thank you. यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम संजना कुमारी सिंह है। मैं वनस्पति विभाग के स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज का ये क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुझे मेरे विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के व्याख्यान का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ललित नारायण मिश्र जो मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पक्ष में अपनी बात रखने जा रही हूँ। ललित नारायण मिश्र के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1972 को हुई थी, तब से लेकर आज तक ये अपने स्वर्ण जयंती के पड़ाव पर पहुंचने वाला है। और अगर इसकी उत्कृष्टता की बात करें तो वाकई ये अपनी बुलंदियों को छूते आया है। और प्राच्य और नूतन माहौल के समावेश की अगर बात करें तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलता है। पूरे बिहार में शैक्षिक जगत में इतना गिरावट आने के बावजूद भी यह विश्वविद्यालय अपने छात्र नियमितीकरण के कारण पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर जाना जाता है। छात्र नियमितीकरण और नियमित वर्ग संचालन और पाठ्यक्रम की नाम मात्र की शुल्क ही वह कारण है जिसके वजह से हर साल यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं, खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो JNU, BHU, DU जैसे बड़े विश्वविद्यालयों का आर्थिक वहन करने में सक्षम नहीं होते। आप लोग में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस कारण से इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। मैं भी उसी का उदाहरण हूँ। यही वह कारण है जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ स्नातक की पढ़ाई के लिए मैं छपरा से दरभंगा तक आई। छात्र नियमितीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर बिहार के छात्र छात्राओं के लिए, जहाँ पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई बार सत्र के समय पर पूरा ना होने से उन्हें अपने सपनों के साथ दावा करना पड़ता है। उनकी उम्र निकल जाती है और वे परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें नाज होना चाहिए अपने विश्वविद्यालय पे कि कभी इस पे ऐसा कलंक नहीं लगा, और मानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण ये थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये अपनी इस खामियों को दूर कर लेगा।
यहाँ इस पावन स्थली से निकले ऐसे कई छात्र छात्राओं का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, जो बड़े पदों जैसे रेल मंत्री, कई प्रतिष्ठित कठिन परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत ही आम समस्या है हमारे बिहार में। आप सोच रहे होंगे कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की व्याख्यान करते करते मैं बेरोजगारी की बात क्यों करने लगी। तो आपको बता दूं कि मिथिला विश्वविद्यालय इस एक ही विश्वविद्यालय में कई ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसकी मदद से हम छात्र छात्राएं अपनी इस बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें कई ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज मौजूद हैं जिनका मदद हम ले सकते हैं। अगर जब बात हो रही है LNMU के उत्कर्ष की, तो इसके सेंट्रल लाइब्रेरी को हम नहीं भूल सकते, जो सिर्फ देश और विदेश ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रचलित है। इसके पुस्तकों की कोडिंग सिस्टम, इसकी भव्यता से तो आप परिचित ही है। इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक की जो पांडुलिपियाँ मौजूद है, उसका और किसी देशों में उस पांडुलिपि का अस्तित्व नहीं मिलता है, लेकिन वो इस पुस्तकालय में मौजूद है। इतना ही नहीं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खाते में और भी कई उपलब्धि शामिल हुई है, जिसका जिक्र करना इतने कम समय में आसान नहीं है, लेकिन मैं कुछ 2-3 बातों को बताना चाहूँगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत संचालित संस्कृति पांडुलिपि केंद्र को इसके सामाजिक विज्ञान संस्थान और पुस्तकालय को इसका केंद्र बनाने की स्वीकृति LNMU को दे दी गई है। और इसरो से रिलेटेड इसरो और LNMU के संयुक्त कोशिशों के तहत कई इसरो से रिलेटेड कोर्सेज उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। LNMU के बारे में हम जितना ही कहें, इसकी भव्य गाथाओं के बारे में उतना ही ग्रंथ तैयार होते जाएगा। इसकी उपलब्धता को शब्दों में, वाक्यों में और कुछ किताबों तक सीमित नहीं रख सकते। इसकी जैसे कहते हैं ना कि गुरु अनंत गुरु कथा अनंता, वैसे ही इस मिथिला विश्वविद्यालय की कथा भी अनंत है, असीमित है, अद्वितीय है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं जो इसकी उत्कृष्टता को बदनाम करना चाहते हैं, इस पे कलंक लगाकर और इसके विपक्ष में बातें कह के इसे दबाना चाहते हैं। माना कि इसकी उपलब्धियों के सामने कुछ इसकी खामियां और अपवाद आते हैं, लेकिन अगर हम छात्र छात्राएं, शिक्षक और इस विश्वविद्यालय से जुड़े हर एक व्यक्ति इस खामियों को समझे और उसे दूर करने पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रौद्योगिकी के साथ प्रबंधन, रंजन युवजन क्रीड़ा, विविध सत्र विषय आदि सुशिक्षा, वृत्ति जनित हर पीड़ा, मिथिला बुदित महामणि मर्मर, मूरत महल परित्राता, नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता। आदरणीय निर्णायकगण, गणमान्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथी, मैं कुमार सुयश आज प्रस्तावित विषय के पक्ष में अपने विचार लेकर प्रस्तुत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा मिथिला के लोगों की लंबे समय तक पोषित इच्छाओं का परिणाम है। वर्ष 1968 विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब UGC ने अपनी टीम को दरभंगा एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय की स्थापना का दौरा करने हेतु भेजा। राज्य सरकार ने UGC के अतिथि गुट के सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए दरभंगा में एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण हेतु एक समिति का निर्माण किया और उस समिति ने वर्ष 1972 में दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और कालांतर के साथ साथ मिथिला विश्वविद्यालय का नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो गया। हमारा विश्वविद्यालय
हमारा विश्वविद्यालय न केवल हमारे देश को अपितु पूरे विश्व को अपने अलंकार रूपी विद्यार्थियों से सदैव सुसज्जित करता आ रहा है। स्थापना काल से लेकर आज तक हमारे विश्वविद्यालय ने जो भी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है वह एक मिसाल, वह हम सबों के लिए एक मिसाल है। चाहे वो पद्म विभूषित श्री हुकुमदेव नारायण जी हो या फिर हमारे रसायन शास्त्री श्री प्रेम मोहन मिश्रा जी। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आज देश विदेश के अनेकों क्षेत्रों में, भले वो रसायन क्षेत्र हो, वो अंतरिक्ष के क्षेत्र हो, वो तकनीकी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो आदि में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। हमारे ही विश्वविद्यालय के महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के एक छात्र डॉक्टर मनीष प्रतीक सर आज देहरादून विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कुलपति की भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे ही विश्वविद्यालय के एक बहुत ही होनहार छात्र डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा सर, उनकी रिसर्च की बुक्स और उनके जो भी अनुसंधान उन्होंने किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में प्रचलित है। महोदय, हमारा विश्वविद्यालय यही नहीं, इनके अलावा इतनी लंबी सूची है कि अगर मैं सबके नाम लेने बैठूं तो शायद पूरा दिन भी निकल जाए, फिर भी वो सूची कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जिस महाविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में इतने प्रतिभाशाली शिक्षक होंगे, उन विश्वविद्यालय के छात्र तो प्रतिभावान होंगे ही। उदाहरण स्वरूप हमारे ही इस महाविद्यालय सेम साइंस कॉलेज के एक पूर्व प्रधानाध्यापक डॉक्टर संगीत कुमार वर्मा सर, शायद सर लोग जानते होंगे जो पहले से होंगे यहाँ पे, संगीत वर्मा सर, वो उनको भारत ज्योति अवार्ड भी मिला, उनको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड भी मिला। और यही नहीं, उन्होंने हमारे माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जब वो गवर्नर थे बिहार के, तो वो उनके सलाहकार के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सके हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में अपितु कला के क्षेत्र में, खेलकूद आदि के क्षेत्रों में भी सदैव से अग्रसर है। मैं अपने विपक्षियों के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि थी सकल अपनी ही सा, सूरत तो कोई खोटा, शीशा तो कोई खड़ा खोटा नहीं देखा, था घंट अपना ही बेसुरा, सुर तो कोई सुरा बेसुरा न देखा। ये तो सोच सोच की बात है, तुमने भला न देखा, हमने कुछ बुरा न देखा। आदरणीय, हमारे विश्वविद्यालय ने कोविड जैसे आपत्ति के काल में, जब पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, तब हमारे विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन क्लासों का संचालन कर, और न केवल ऑनलाइन क्लासेस बल्कि ऑनलाइन वेबिनार्स का भी संचालन कर इंटरनेशनल लोगों को भी जोड़कर हम लोगों से शिक्षा का अलग जगाया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत उदाहरणीय कदम है। हमारा विश्वविद्यालय आज लगातार 50 वर्षों से बुलंदियों के उत्कर्ष को छू रहा है। महोदय, जिस प्रकार किसी भी मनुष्य के भविष्य का निर्धारण उसके वर्तमान से होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालय के भविष्य का निर्धारण हम और आप जैसे छात्र छात्राओं से होगा। अतः मैं आप सभी छात्र छात्राओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने शिक्षा का अलग जगाकर हमारे विश्वविद्यालय का नाम सदैव ऊंचा करें। और अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे छात्र छात्राओं के लिए कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारी सफलता का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन हमारी सफलताओं का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। धन्यवाद एवं शुक्रिया। शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मृत्युंजय कुमार मैथ्स ऑनर्स डिपार्टमेंट से आप लोगों के सामने यहाँ आज अपने पक्ष के विषय में कुछ बात रखने आया हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे विद्यालय के 50 वर्ष जो हम लोग स्वर्ण जयंती के मौके पर बोलने आए हैं, इसके लिए मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। आज का विषय कुछ इस प्रकार है कि हमें ये बताना है कि 50 साल में आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कितनी ऊंचाई को छुआ है। ये बात हम तब सोच सकते हैं जब हम ये पता सही से कर सके कि ये विश्वविद्यालय जब बनी थी उस समय की स्थिति क्या थी। जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। ये उस दौर की समय है जब सिर्फ और सिर्फ हमारी संविधान की बनी हुई 22 साल हुई थी। और उस समय बिहार की स्थिति
बिहार की स्थिति में शिक्षा पूरे देश में सबसे कम, और हमें पता है कि क्रांति लाने के लिए जो सबसे पहली कदम होती है वो कितनी मुश्किल सी होती है। ललित नारायण मिश्र के कुछ कार्यों के द्वारा हम लोगों को आज जो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय मिली है, आज उसकी स्थापना के बाद ये इतने वर्ष 50 वर्ष बाद आज ये बिहार का इतने यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये आज प्रथम स्थान पर है। ये NIRC के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स के द्वारा ये फर्स्ट पोजीशन पे आज बिहार में। ये हमें ये बताता है कि पहले जो बिहार कहाँ होता था, जो बिहारियों के नाम से ही सिर्फ कई अपशब्द बोले जाते थे, वही बिहारी आज हर एक जगह जाके अपनी बोलबाला बनाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही बातें नहीं है, ये आज देश विदेश हर एक क्षेत्र में सुवर्ता रॉय सब नाम जानते हैं, सहारा के को-फाउंडर, वो कहाँ के थे? ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के चांसलर, हम लोग के यूनिवर्सिटी के जो VC साहब थे वो, उन्होंने भी इन्हीं विश्वविद्यालय से पढ़ के रखा, वो दोनों ही जगह के VC रह चुके हैं। बात यहाँ ये समझना है कि जिस विश्वविद्यालय को संविधान के सिर्फ 22 साल बाद बनाया गया, जहाँ की स्थिति कुछ इस कदर थी कि लोगों को पढ़ने की पूरी तरीके से अधिकार नहीं दी गई थी। महिलाओं जो आज के समय में बढ़ चढ़कर हर एक हिस्सों में भाग ले रही है, हर एक चीज़ों में भाग ले रही है, उस समय बिहार में उन्हें पढ़ने की पूर्णता आज़ादी नहीं थी। लेकिन आज सभी लोग जानते हैं कि वो विद्यालय कहाँ तक पहुँच चुकी है, उन्हें बोलने का अधिकार है। जब बिहार में पूरी की पूरी कुरीतियाँ थी, जात पात, उनके शिक्षाओं का अधिकार नहीं, फिर भी उन्होंने इतने बड़े क्रम में ये किया और विश्वविद्यालय को खोला। आज वो विश्वविद्यालय उत्तर भारत के हर एक क्षेत्र को जोड़ रहा है। आज अब दरभंगा, बिहार, समस्तीपुर जोड़ रहा है और उस देवी के बेगूसराय को भी जोड़ रहा है। बात ये समझना होगा हमें यहाँ पे कि ये आखिर इतने सोच कर क्या हम लोग शिक्षा और विद्या दोनों ही मिलता है हमें विश्वविद्यालय में। अगर हम शिक्षा की बातें करें तो बहुत लोगों ने बताया कि ये शिक्षा से क्या मिल रहा है हमको, लेकिन जरा हम विद्या पे सोचे तो विद्या भी विश्वविद्यालय से ही मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग शिक्षा पाकर, शिक्षा तो यहाँ से हजारों लाखों हर एक साल 1.5 लाख स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ UGC के लिए। अगर हम देखें तो PG में भी एडमिशन, लेकिन क्या अगर हम गिन के 4 लोगों की अच्छाई बोल दें तो वो जरूरी नहीं है। यहाँ 1.5 लाख बोले, 1.5 लाख में 4 कितने % होते हैं? लेकिन उन बातों को देखें तो अगर मिथिला विश्वविद्यालय की बातें की जाए तो ये एकमात्र दुनिया की विश्वविद्यालय है जो मिथिला की संस्कृति को बनाई हुई है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को ही नहीं, विद्या को भी हमें ज्ञान देती है और ये हमें ये बताती है कि हमारी संस्कृति क्या है। और ऐसी कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जो हमें मानव बनने का सिखाती है। हमें मानव बनना आज के समय में शिक्षित होने से ज़्यादा जरूरी है। अगर हम शिक्षित हो भी गए तो क्या हो, हम लोग आज से नहीं शिक्षित हैं। बिहार, भारत, देश विदेश सभी लोग शिक्षित हैं, लेकिन क्या आज हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हर रोज की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी को देख के हमें ये लगता है कि ये शिक्षित होना जरूरी है। हमारे विश्वविद्यालय ने मानव बनाने की कोशिश की है और इस मानव बनाने के क्रम में ये आगे बढ़ा है। अगर हम बिहार की स्थिति को पहले देखें और बिहार की स्थिति को आज देखें तो विश्वविद्यालय का सिर्फ काम कॉलेज के उन बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं होता है जो क्लास में यहाँ पढ़ रहे होते हैं, ये उनके परिवारों से भी जुड़ा होता है और उस समाज जहाँ ये पढ़ा रही होती है उसके इकोनॉमिक कंडीशन से भी जुड़ी हुई होती है। वो बिहार जो पहले कहीं अपने सर उठा के नहीं खड़ा हो सकता था, आज इस विश्वविद्यालय के बनने के इतने दिनों बाद वो कहीं भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी सुधारने के बाद आज कहीं खड़ा हो सकता है। आज बिहार की सिचुएशंस जो पहले थी उससे कहीं गुना अधिक बढ़ी है। और इसमें किस चीज़ की, वो बिहार आज भी है और वो बिहार कल भी था, लेकिन आज यहाँ शिक्षित बिहार है। यहाँ हर साल वो 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 से 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कहाँ के हैं तो सिर्फ और सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के। इन बातों से आकलन करना थोड़ा सही होगा कि हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बच्चों, एक एक बच्चों को हम देख के कह सकते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है अपनी किस ऊंचाई पे है। अगर हम सिर्फ देख लें शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है विद्या, जिसकी आज कमी है। और अगर हमें एकमात्र विश्वविद्यालय जो हमें विद्या की ओर आगे बढ़ा रहा है तो वो विद्यालय सही है। आज के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं कुछ हो रहा है और अगेंस्ट में यही सोच होती है। तो चांद के साथ क्या होता है ना, चांदनी भी मिलती है, लेकिन अगर चांद के सिर्फ हम धब्बे को देखेंगे ना तो चांद की चांदनी हमें कभी दिखाई नहीं देगी। तो चांद की चांदनी को देखने के लिए हमें चांद की धब्बे से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
हार्दिक अभिनंदन और सभी मित्रों को। आज का जो टॉपिक है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज लगातार वर्षों से उत्कर्ष की बुलंदियों को छू रहा है, तो मैं इसके फेवर में बोलना चाहूँगा। मौजूदा हाल में हम सभी जानते हैं कि हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा, मगर हम इसके अतीत में चलते हैं इसकी बुलंदियों को गिनवाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि प्रसिद्ध था अपने शुरुआती नाम से मिथिला विश्वविद्यालय से, बिहार की मिथिला की पावन धरती शहर दरभंगा में स्थित था, जो कि उत्तर भारत के हिमालय के पर्वत श्रृंखला और गंगा के तट पे स्थित है। मिथिला विश्वविद्यालय अपने अतीत से ही बुलंदियों को छूता आ रहा है। अपने शुरुआती दौर में यूनिवर्सिटी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, जो कि यहाँ के मिथिला वासियों की जब मांग हुई कि मिथिला के क्षेत्र में एक अपनी विश्वविद्यालय होनी चाहिए, तब बिहार के विधानमंडल से लेकर संसदीय क्षेत्र तक इसकी आवाज़ उठी और तब 1968 ईस्वी में यूजीसी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक टीम गठित की और बिहार के मिथिला विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए आमंत्रित की गई। और उस समय के मिथिला के बहुचर्चित नगरवासी पंडित गंगाधर मिश्र, जिनकी छवि आज इसी सभागार में हमारे सामने चौखट पे मौजूद है, उन सब की कर्तव्य के कारण ही ये मिथिला विश्वविद्यालय बनी। और विरुद्ध में आज के युवाओं को बोलने के लिए बहुत ही शब्द हैं कि शैक्षणिक सख्त पूरा नहीं हो पा रहा, लेट सेशन चल रहे हैं, रिजल्ट्स टाइमली नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इन सब का एक मुख्य कारण है कोविड महामारी, जिनसे न जाने कितने शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटीज़ अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। और हमारे मिथिला विश्वविद्यालय की उपलब्धि अगर गिनवाना चाहें तो कई है, मगर मैं फिर भी गिनवा देना चाह रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय में मौजूद सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि अपने गौरवहीन इतिहास को संजो कर रखे हुए है अपने किताबों में, पांडुलिपियों में और पत्रिकाओं में, जो कि 73,000 से भी ज़्यादा अंकों में मौजूद है। विश्वविद्यालय न केवल इतना ही, अभी हाल के ही दिनों में पूरे भारतवर्ष में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान महोत्सव आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ही संबद्ध कॉलेज हमारे सीएम साइंस कॉलेज में ही आयोजित की गई थी। और इस प्रतियोगिता में पूरे भारत में अपनी एक पहचान दिलाई बिहार के इसी यूनिवर्सिटी ने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। इन्हीं गौरवहीन बातों को लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जिंदगी भले ही जन्मभूमि ने दी, जिंदगी भले ही जन्मभूमि ने दी, पर जीना हमें कर्मभूमि ने सिखाया है। मंच पर आसीन सभी शिक्षकगण, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं रिद्धि आज के दिए गए विषय में अपना
विषय के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करूंगी। ललित नारायण विश्वविद्यालय 50 वर्षों में उत्कृष्टता की बुलंदियों को छू रहा है। विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय की इकाई क्या है? विश्वविद्यालय किनसे बनता है? साथियों, विश्वविद्यालय हम छात्रों से बनता है, शिक्षकों से बनता है और कर्मचारियों से बनता है। हमारे विश्वविद्यालय जो मिथिला के दरभंगा में स्थित है, ये उस समय स्थापित किया गया जब हमारे यहाँ शिक्षा बहुत ही छोटी थी। शिक्षा जब नारियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, जब बहुत सारे दिक्कतें थी शिक्षा के लिए, उस समय इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1972 में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज बिहार के 4 जिलों में अपना स्थान कर चुकी है: मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती है। हमारे कुलपति जी के देखभाल में हमारे विश्वविद्यालय में रैगिंग जैसी चीज़ें नहीं होती है। हमारे कोरोना जैसे समय में भी हमारा विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस करवाता था। ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी नोट्स दिए जाते थे, जिससे बच्चों को बहुत सारी सुविधा हुई। नारी के लिए शिक्षा के लिए भी हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से वो निर्भीक होकर अपना पढ़ाई कर पाती है। मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के रसायन विभाग का स्नातक द्वितीय खंड का छात्र हूँ और मैं अपना बात विपक्ष के रूप में रखना चाहता हूँ। कि शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए, कि शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए, कि शब्दों में हो दम इतनी कि आह निकलनी चाहिए, दुश्मनों की रंजिश की दीवारों से। A very good afternoon to all my honorable guests, teachers and my all dear friends. Today I stand A very good afternoon to all my honorable guests, teachers and my all dear friends. Today I stand in front of you to share my opinions on the topic of our LNM has developed or not after 50 years. First of all, I would like to say thanks to my teachers for giving me this opportunity. I am not totally agree that our LNMU has developed, because still there is no punctuality. Result doesn't come on time. Session is almost delayed. We have continuously following that problems. We have continuously facing that problems. And if we talk about the students are more aware to take part in corruption comparison to take part in study. Just because they are not satisfied about their result, they study well during their examination, but they get not satisfied. They don't get sufficient marks. There is, in terms of placements, there is no placement, no good placement actually. Placement gives the students the opportunity to develop their skills, soft skills, and such a skills which helps them to enabling their goal and in a teamwork. Here is admission takes place on the basis of marks, not the knowledge. So some of the students which are facing the problems just because of parent pressure, they choose the wrong subject. So according to me, there should be conduct an entrance exam. And my point is that here is not biotechnology course in UG provided by LNMU. And if we talk about our LNMU is one of the reputed university, and it get developed after 50 years, but there is something missing. So we should have to take focus
on that which is missing in our LNMU. Thanks to all of you. मैं त्रियोगी नाथ BSc पार्ट 1 या 2 तो कह नहीं सकता क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। BSc सेशन 2020 और 23 का स्टूडेंट हूँ। बात यहाँ ये है कि बाद में बोले या विवाद में बोले डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे जो वाइस चांसलर SP सिंह सर हैं, इनका जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता करवाए हैं, मैं इनका सराहनीय करता हूँ, क्योंकि इस तरह का प्रतियोगिता से ही हम स्टूडेंट अपने बात को अपने SP सिंह सर या अपने जो अधिकारी जो हमारे मार्गदर्शक है उसके सामने में रख सकते हैं। सर बात यहाँ पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो पिछले साल हम लोग सितंबर या कुछ में दिए, उस समय में भी पेपर में ऐसा बार बार आता रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, कुछ हुआ, ऐसे हुआ, जो कि पेपर सबके घर में लगभग आता है, सब लोग देखते हैं। कुछ दिन पहले ही जस्ट 14 जुलाई को मेरे घर में हिंदुस्तान आता है, उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में देखे हैं कि पार्ट 1 का रिजल्ट इसी सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज 20 जुलाई हो गया है, अभी इस सप्ताह पूरा होने में बस 1 से 2 दिन डिले है। क्या इसमें आज या कल में तो आ नहीं सकता रिजल्ट? क्या इससे अगर क्लास में भी मैं अपने कॉलेज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में रेगुलर का स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग हमारे डिपार्टमेंट के सर या मैम हमको जानते हैं। मैं उस समय भी क्लास के समय में अपने सर या मैम से पूछता था कि हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा या क्या, तो बताया जा रहा था सर की द्वारा कि मतलब पैसा का कुछ इधर उधर है, जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है वो उसका पैसा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक रिजल्ट फंसा हुआ है। तो ऐसा हुआ था, बताया जा रहा था हमारे शिक्षक कर्मचारी, उनका तो नाम मैं नहीं लूँगा। ऐसा स्थिति से ही हम लोग बिहार में पढ़ते हैं। बिहार का आखिर स्टैंडर्ड अभी के समय में इतना गिरा क्यों है? एक आर्यभट्ट से जो 0 दे के ही हीरो बना दिए बिहार को। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हम लोग बिहारी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को नीचे दिखाया जाता है या कुछ दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा ये बात नहीं है कि हम बिहार के बच्चे के पास मेरिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको विकसित नहीं हो पाया है, विकासशील ही है अभी तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक शिक्षक का पहचान होता है वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो एक विद्यार्थी का पहचान होता है वो अच्छा पढ़ सकता है, तो उसी तरह एक विद्यालय का होता है कर्तव्य वो अच्छा पढ़ने का व्यवस्था करवा सकता है। उसी तरह हमारा यूनिवर्सिटी का भी एक ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपना रिजल्ट ससमय घोषित करके अपना यूनिवर्सिटी का नाम और अपना स्टैंडर्ड जो अपने देश के अंदर में बढ़ा सके, क्योंकि ये कतई मान्य नहीं है कि जो कोविड-19 पूरा जितना खाया पिया और कोविड के नाम पे अपना इल्ज़ाम लगा दिया जाए, क्योंकि ये कतई सराहनीय नहीं है। और इससे हम लोग जो हमारा भविष्य, हम लोग का जो बच्चे का भविष्य जो बर्बाद किया जा रहा है उससे बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बात बोलने का अधिकार हम लोग को ही दिया जाएगा। और जो हमारे जो सर हैं वो जो इस तरह का प्रतियोगिता करवाए, क्योंकि हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। 50 वर्ष के पूर्ण होने पर भी जो इस प्रतियोगिता करवाया गया वाद विवाद पे, मैं इनका सराहनीय करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। हम लोग स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग गांधी विचारधारा का मानने वाले लोग हैं, हम लोग सत्य और अहिंसा को लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्द दे दे, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 में आ गए, लेकिन किसी को कह नहीं सकते कि पार्ट 2 में आ गए। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं एवं हमारे प्रिय शिक्षकगण, जितने भी प्रतिभागी इसमें थे वाद विवाद प्रतियोगिता में, उसमें जो अंतिम निर्णयकर्ता की तरफ से हुआ है
तृतीय मृत्युंजय कुमार शर्मा, द्वितीय संजना कुमारी सिंह, प्रथम कुमार सुएस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और जितने भी प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।